Hello, welcome learners. Welcome to Political Science Mantra. For all the newcomers joining in for the very first time, please do like, share and subscribe to my channel. Now let's get started. Now we will begin with the quote of the day as always. Just one small positive thought in the morning can change your whole day. This is a very powerful quote by Dalai Lama, and I hope that we all try to inculcate this very idea into our lives for a happy life. So as we know that this is our sixth or seventh video, and now we would be starting with a new topic. And we have already covered the theories of IR. We have already covered realism, liberalism, and the various perspective to international relations. Now, today for our topic for discussion is globalization. Now, globalization, as we know, is the new reality of our lives. And today we will delve deep into its evolution, the underlying debates, regarding globalization, the various views of the scholars, that what are their perspective about this entire phenomena of globalization, and last but not the least, the critical evaluation part. Now let's get started. So in the very first slide, we see the introduction. Now, what do you ask is like creating a borderless world and a global village. Now, as we all know that the entire phenomena of globalization has become a reality of our lives. Okay. So when we talk about globalization, this is a process, this is a phenomena which is not limited by the borders of our world. So it creates a world which is borderless. Now, creating a world that is borderless actually means that our transnational relations are happening, which are extending beyond our borders. Then the kind of exchanges that we do in our everyday lives, the kind of news, information, ideas, value systems that we all are exposed to is not limited by our borders. ठीक है, तो बॉर्डर से कुछ भी चीजें लिमिटेड नहीं है. जैसे ही ग्लोबलाइजेशन एज अ फिनोमिना शुरू हुआ, तो हमने देखा कि जो हमारा पूरा विश्व था उसमें अलग अलग सीमाएं बनी हुई हैं. हर एक देश की अपनी एक डिफाइंड सीमा है. आज भी वो सीमा है, मैं उस बात को बिल्कुल नहीं नकार रही हूं कि वो सीमा आज हट चुकी है. आज भी वो सीमा मौजूद है, प्रेजेंट है. बट फर्क क्या पड़ा है? फर्क ये हुआ है कि आज जो वो सीमा है उसका जो काम है वो उतना ही कम हो चुका है. तो कहीं ना कहीं अगर आज हम डिफरेंट कंट्रीज की बात करें, जो उनका इंटरैक्शन है आपस में, वो कहीं भी अब इन सीमाओं से या बॉर्डर से डिफाइन नहीं किया जा सकता. ठीक है, इसीलिए हम इसे ग्लोबल विलेज कहते हैं. तो अब हमारा स्टेट तो इंपॉर्टेंट है ही. State is a reality. State is a very important part of international relations. But along with this, we also realize कि अब हमारा जो वर्ल्ड है वो एक कम्युनिटी में तब्दील हो चुका है. अब हमारा जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, जहां पे चीजें बहुत ही कॉमन होती हैं, कलेक्टिव बेनिफिट्स के लिए देखी जाती हैं. और हमें ये बात का अंदाजा हो चुका है कि कोई भी स्टेप अगर हम अपने रीजनल या स्टेट लेवल पे लेते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबल हो सकता है. ठीक है. Next is inexorable integration of markets, nation states and technologies with compression in time and space. ठीक है. अब जो मार्केट्स है, जो नेशनल स्टेट्स है और नेशन स्टेट्स है सॉरी, और जो टेक्नोलॉजी है, उनका आपस में बहुत अच्छा मेल हो चुका है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ग्लोबलाइजेशन से आई है. तो अब हमारी जो मार्केट्स है, जो टेक्नोलॉजीज है, वो रिलेंटिंग हो चुकी है. मतलब कि अब हमारे जो मार्केट्स हैं वो आपस में इंटीग्रेट हो चुके हैं. जो स्टेट्स हैं वो अपने आप को वर्ल्ड कम्युनिटी का हिस्सा मानकर आपस में इंटरैक्ट करते हैं. और जो टेक्नोलॉजी है वो किसी भी स्टेट तक लिमिटेड नहीं है. सो टेक्नोलॉजी जो है वो आपस में हम शेयर कर सकते हैं. तो इसीलिए ग्लोबलाइजेशन को वाइडनिंग, डीपनिंग और स्पीडिंग अप ऑफ द वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस भी कहा जाता है. क्योंकि अब चीजें हम आपस में, हम आइसोलेटेड नेशन स्टेट्स की तरह नहीं रह चुके हैं.
जब हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ऑर्डर का पार्ट हैं तो हम एक ग्लोबल कम्युनिटी का पार्ट हैं, और ये ग्लोबल कम्युनिटी आपस में कंटिन्यूअसली क्लोजली इंटरैक्ट और रिलेशनशिप्स को डेवलप करती है। साथ ही साथ हमारे जो टाइम और स्पेस के डायनामिक्स है वो कंप्रेस हो चुके हैं। कंप्रेस होने का बेसिक मतलब है कि जो हमारा वर्ल्ड है अब वो श्रिंक हो चुका है। अब जिस वर्ल्ड को हम देखते थे कि कभी हम एक टाइम था पहले जब हम सोचते थे कि क्या जो चीजें अमेरिका में या यूरोप में हो रही है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्लोब में हो रही है, क्या हम कभी उनका हिस्सा बन पाएंगे, उनके इवेंट्स का वहां पे हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे, या सिमिलरली लाइकवाइज फॉर द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्लोब। लेकिन आज वो जो सारी दुविधाएं हैं, जो सारे डाउट्स हैं, वो हट चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा टाइम और जो स्पेस है वो आपस में श्रिंक हो चुका है। अब हमारा कोई भी लोकल डेवलपमेंट होता है तो उसका डिस्टेंट इंपैक्ट होता है, या फिर कोई भी डिस्टेंट स्पेस में किसी भी फार रीचिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड में कुछ भी इवेंट होता है तो जो उसका इंपैक्ट है वो लोकल, डोमेस्टिक, रीजनल लेवल तक होता है। इसीलिए जो हमारा वर्ल्ड है वो श्रिंक हो चुका है टाइम के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनामिक है ग्लोबलाइजेशन का। ये एंथनी गिडन्स और इन सारे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इन चीजों के बारे में अपने अपने राइटिंग्स में मेंशन किया है। साथ ही साथ जो हमारा सोशल रिलेशन है वो इंटेंसिफाइड हो गया है। इंटेंसिफाइड मतलब देयर इज अ डीप एनमेशिंग of the local and the global consequences which have collective awareness as a shared social space। ठीक है, तो जिसे हम ग्लोबलिज्म भी कहते हैं। तो अब जो हमारी सोशल रिलेशंस है, जो हमारा सोशल इंटरैक्शंस है, अब जो हमारी सोसाइटीज है वो आइसोलेटेड नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे जो रिलेशनशिप्स है वो डीपली इंटेंसिफाई हो चुके हैं। ठीक है, अब कोई भी अगर इवेंट है, कोई भी इवेंट अगर अमेरिका या किसी भी डिस्टेंट पार्ट ऑफ द ग्लोब में होता है तो कहीं भी वहां न्यूज होता है, कोई भी टर्ब्यूलेंट एक्टिविटी होती है या कोई पीसफुल एक्टिविटी होती है, तो जो उसका इम्पैक्ट है वो हमारे लोकल लेवल पर भी उतना ही पड़ता है। ठीक है, तो हमारे जो सोशल रिलेशंस है वो क्या हो चुके हैं, इंटेंसिफाइड हो चुके हैं। तो नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो चुकी हैं एक वर्चुअल रिलेटिव ऑपरेशंस की। ठीक है, एक वर्चुअल वर्ल्ड की। एक वर्चुअल वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है जहां पे हम आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के हम कुछ कॉमन इवेंट्स में साइमल्टेनियस पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक वाइडर पिक्चर है। अब हमारी जो पिक्चर है वो सिर्फ अपने स्टेट या नेशनैलिटी से लिमिटेड नहीं है। हमारी जो पिक्चर है वो एक वाइडर पिक्चर बन चुकी है, जिसे एक्चुअली कॉस्मोपॉलिटनिज्म का आइडिया भी देते हैं कि एक कॉस्मोपॉलिटन सिटीजन जो कि ना सिर्फ अपनी रीजनल या अपनी जो नेशनलिस्ट आइडेंटिटी है उससे रिलेट करता है, बट ही रिलेट्स himself or herself with the idea of a global citizenship। ठीक है, ग्लोबल सिटीजन की बात करता है। ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसने डी टेरिटोरियलाइजेशन किया है। डी टेरिटोरियलाइजेशन मतलब नाम से पता चलता है जो चीजें टेरिटरी से रिलेटेड है अब वो धीरे धीरे डिमिनिश हो रही है। ठीक है, तो अब हमारा जो स्ट्रिक्ट टेरिटोरियल लॉजिक है वो कहीं ना कहीं हम उसे डिफाई कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले के टाइम पे इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि कोई ग्लोबल ब्रांड्स होते थे, कभी हम उनके आउटलेट्स या उनका जो प्रोडक्ट्स है अपने नेशनलिस्ट टेरिटरी में देखें। बट क्या आज वो चीजें असंभव है? नहीं। आज हम देखते हैं कि कोई भी वर्ल्ड में कहीं भी कोई ब्रांड है, कोई भी कंपनी है, कोई भी फैक्ट्री है, कुछ भी प्रोडक्ट है, गुड है, सर्विस है, वो हमें डोमेस्टिकली भी अवेलेबल है। ठीक है, इसका एक मतलब ये प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से देखें तो इट हैज ग्रेटली बेनिफिटेड द ग्लोबल इकोनॉमी। हमारा जो ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल ट्रेड में इट हैज इंक्रीज टू 70 to 80%। तो ये इकोनॉमिक सेक्टर के लिए इट हैज बिकम लाइक अ बून। बट वी नो दैट एवरी फिनोमेना हैज बोथ द पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव साइड टू इट। सो वो भी हम डील करेंगे लेटर इन अवर लेक्चर। बट इनिशियल आइडिया ये है कि डी टेरिटोरियलाइजेशन हुआ। अब चीजें हम अपनी बॉर्डर या टेरिटरी से नहीं लिमिट कर सकते हैं।
इसका दूसरा एग्जाम्पल टेररिस्ट नेटवर्क्स हो सकते हैं। टेररिस्ट नेटवर्क्स अगर अलकायदा है या फिर आईएसआईएस है, सो दे आर, वी नो दैट दे आर बेस्ड इन तालिबान नेटवर्क और वट एवर नेटवर्क्स, सो ये जो नेटवर्क्स हैं, जो ये दीज फंडामेंटलिस्ट आइडियाज or these terrorist networks who actually operate on the basis of creating fear in the minds of the people, कि कैसे लोगों के मन में एक fear, एक डर पैदा करना है, ठीक है। तो अगर वो locally भी मौजूद ना हो तो उनके virtual networks इतने deeply enmeshed हैं पूरी world community में कि just with the press of a button from one end of the globe they can cause mass destruction in the other part of the globe, ठीक है। तो अब चीजें हम physically गन से फाइट करना या शूट करना, वो चीजें yes they are even relevant today, but beyond that we see technology has evolved so much, टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो चुकी है टाइम के साथ कि ये जो नेटवर्क्स है अब वो कहीं भी टेरिटरी से लिमिटेड नहीं है, ये नेटवर्क्स हमारे टेरिटरी के बियॉन्ड भी ऑपरेट करते हैं। Next is the concept of globalization is opposed to internationalization and regionalization. ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनलाइजेशन एंड रीजनलाइजेशन, और हमें ये पता करना है कि ये दोनों टर्म्स से डिफरेंट ग्लोबलाइजेशन एज अ फिनोमेना क्यों है। जब हम इंटरनेशनलाइजेशन की बात करते हैं तो तब हम बात करते हैं एन आइडिया वेयर स्टेट्स विलिंगली पार्टिसिपेट इन अ पर्टिकुलर इंटरनेशनल प्रोसेस, ठीक है। जब हम इंटरनेशनलाइजेशन की बात करते हैं तो ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस बिल्कुल है स्टेट्स के बीच में, लेकिन अभी स्टेट एज अ डिस्क्रीट नेशनल यूनिट विद क्लियरली डिमार्केटेड बॉर्डर्स अभी वो इग्नोर नहीं की जा सकती है। तो स्टेट अपनी मर्जी से किसी ग्लोबल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है। ये आइडिया हुआ आपका इंटरनेशनलाइजेशन का। तो जब हम इंटरनेशनलाइजेशन की बात करते हैं और ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, ये एक स्टेप बियॉन्ड है, ठीक है। बियॉन्ड क्यों है? क्योंकि जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो जो स्टेट का डिमार्केटेड बॉर्डर्स है एज डिस्क्रीट नेशनल यूनिट्स, वो कहीं ना कहीं हम बियॉन्ड उसके देखते हैं बॉर्डरलेस वर्ल्ड के लिए, जहां स्टेट का जो बॉर्डर्स है वो इतना सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता है। तो ये है अ स्टेप गोइंग बियॉन्ड इंटरनेशनलाइजेशन इज एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन, ओके। Now, the idea of regionalization is also important. Regionalization क्या होता है? Basically, जब intensified patterns of cooperation या interconnectedness होती है या integration होती है among nation states which have common borders. तो जैसे आज के टाइम में हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि they are all having they are having a single currency that they use, that is euro. They have a common market, they have a European parliament, a common parliament, ठीक है, they have a court of justice. तो ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं geographically they are existing in proximity to each other. Geographically वो closely located है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने लिए ये कॉमन अरेंजमेंट खोजा है, ठीक है, फॉर एनहांसिंग देयर इंटरकनेक्टेडनेस, ठीक है। ये रीजनलाइजेशन हो गया। लेकिन जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो जो ये इंटेंसिफाइड पैटर्न्स है कोऑपरेशन के, ये सिर्फ उनकी ज्योग्राफी से या उनके कॉमन लोकेशन से लिमिटेड नहीं होती है। जब हम इन सारी चीजों की बात करते हैं तो दे गो बियॉन्ड द बॉर्डर्स, दे गो बियॉन्ड ज्योग्राफी, ठीक है। तो अब हमारे लिए ग्लोबलाइजेशन में ज्योग्राफी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ज्योग्राफिकल लॉजिक से अपने आप को लिमिट नहीं कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं अ कंपनी विच इज बेस्ड इन यूएस, which has its headquarters in US, also have their sub offices, district units, or सब एजेंसीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। चाहे वो अफ्रीका हो, एशिया हो, लैटिन अमेरिका हो, कहीं भी हो, तो वहां पे उनके हेडक्वार्टर्स या जो स्मॉल रीजनल ऑफिसेज होते हैं वो हर जगह मौजूद होता है। तो कहीं ना कहीं वो दे आर नॉट लिमिटेड बाय द टेरिटोरियल लॉजिक और रीजनलाइजेशन। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लोज प्रोक्सिमिटी के लोग स्टेट के साथ ही कोऑपरेशन डेवलप करना है, उससे एक स्टेप बियॉन्ड जाना है। Last but not the least, transnational participation in the era of complex interdependence. ये हमने ऑलरेडी डील किया है जब हमने लिबरल आइडियोलॉजी पढ़ी थी
इंटरनेशनल रिलेशंस की, कि कैसे कोहेन और नाय का कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का जो आइडिया है वो आज भी जिंदा है, देयर इट इज आज भी इट इज रेलेवेंट इवन टुडे। और इसकी वजह से क्या पॉसिबल हुआ है? ट्रांसनेशनल पार्टिसिपेशन। नाउ जब ट्रांसनेशनल पार्टिसिपेशन की बात आती है तो आज के टाइम में इफ अ पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस इज बीइंग कंडक्टेड इन स्वीडन और इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड you as an Indian citizen want to attend that conference or you want to participate in that conference or paper presentation or whatever, तो आज के टाइम में it is quite possible। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वर्चुअली यू कैन ज्वाइन इन एंड पार्टिसिपेट। तो इस तरीके के जो पार्टिसिपेटरी फोरम्स हैं वो खुल चुके हैं ट्रांसनेशनल एक्टर्स के लिए, ठीक है। नॉट ओनली यू, इफ एनी एनजीओ इन एनी पर्सन हुज बिलोंगिंग फ्रॉम द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, वो भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है चाहती है तो उनके लिए भी वो एवेन्यूज आज भी खुले हैं। तो वो सब पॉसिबल कैसे हो पाया? बिकॉज वन इज द टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, की जैसे आईटी रेवोल्यूशन हुआ है। सो वी सी दैट हाउ थिंग्स हैव बिकम सो स्मूथ फॉर अस, ठीक है। अब हमारे लिए कनेक्ट करना कितना आसान हो चुका है। इवन लाइक आई एम डिलीवरिंग दिस लेक्चर वाया द जूम कॉल, तो ये चीजें कितनी इजी हो चुकी है, इतनी फैसिलिटेट कर चुका है। इस तरीके का प्लेटफॉर्म हमें पार्टिसिपेशन के लिए फैसिलिटेट करता है, हमें इनकरेज करता है। तो उस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। सो इन शॉर्ट व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन, जब हम इंटीग्रेशन इंटेंसिफिकेशन की बात करते हैं तो वेलोसिटी, इंटेंसिटी एंड डीपनिंग ऑफ द रिलेशंस, ये इंपॉर्टेंट है। जो वर्ल्ड है वो इंटरनेशनलाइज्ड हो चुका है बिकॉज इट्स नो लॉन्गर लिमिटेड बाय द नेशन स्टेट्स एंड वी टॉक अबाउट अ बॉर्डरलेस ग्लोबल विलेज। जब हम एक वर्ल्ड कम्युनिटी की एज अ कम्युनिटी बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो जब हम ग्लोबलाइजेशन एज अ फिनोमेना की एवोल्यूशन की बात करते हैं तो वी थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे दिमाग में एक आइडिया रहता है कि अराउंड द एरा ऑफ 1990s द वर्ल्ड हैज बिकम ग्लोबलाइज्ड। True, that's very true, but we cannot limit our knowledge to this particular era, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के entire journey में बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क इवेंट हुए हैं in the past before 1990s which actually paved way for a smooth globalization to enter into the world during the 1990s, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का जो फिनोमेना है वो इसीलिए उसका फार रीचिंग इम्पैक्ट है और ह्यूमन एवोल्यूशन की हिस्ट्री में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो हम जब पीरियडाइजेशन की बात करते हैं, पीरियडाइजेशन मतलब बेसिकली उसको एक एक टाइमलाइन में अरेंज करना कि व्हाट एवर हैपेंड इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या क्या लैंडमार्क इवेंट्स हुए हैं। तो वो चेंजेस भी हैं, कंटिन्यूटीज भी हैं एंड वी विल ट्रेस इट इन द टाइमलाइन फॉर्मेट, ओके। But before that, we need to also understand that certain scholars like Robertson and Rosenau, they have also tried to interpret globalization. उन्होंने भी globalization में अपने important feedbacks and contributions दिए हैं। उनका कहना है कि जो globalization है, initially when it began, around 1960s, it had a very humble beginning, कि इतना टेक्नोलॉजी का evolution नहीं हुआ था, but slowly and gradually जब हम देखते हैं कि foreign exchanges बढ़ने लगे, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस आने लगे और द राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स आने लगे, आईटी रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन होने लगा। सो वी सी दैट हाउ द एंटायर इंटेंसिटी ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज चेंज्ड, इट हैज डीपन्ड एंड इट हैज इंक्रीज्ड, ओके। But along with this, there are also many Marxist scholars, like Rosenau is one Marxist scholar, और ये कहते हैं कि जो ये ग्लोबलाइजेशन है ये एक बज वर्ड है कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन का, जो एक्चुअली पुराना है, ठीक है। तो जिस तरीके से हम कोलोनियलिज्म की बात करते हैं, जिस तरीके से हम इंपीरियलिज्म की बात करते हैं, जिसमें एक टाइम पे जो वेस्टर्न पावर्स थे, दे यूज्ड टू एक्सप्लॉइट द अदर पार्ट ऑफ द ग्लोब, तो वो अभी भी चालू है, लेकिन उसका जो टर्मिनोलॉजी है वो चेंज हो चुकी है। तो जब ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं तो ये एक नया ट्रेंडिंग टर्म है, लेकिन जो इसका मोटिव है वो अभी भी वो ही है, that is old capitalist exploitation, a very very eye opening kind of a statement, okay। मार्क्स की अगर हम बात करें, कार्ल मार्क्स की, उन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मेंशन करी थी कि सर्च फॉर प्रॉफिट्स विल टेक बुर्जुआ एवरीवेयर। तो हम देखते हैं कि वो ये जो ये स्टेटमेंट है, इट वाज मेड
so many centuries back, लेकिन आज भी जो उसका रेलेवेंस है या उसका जो इम्पोर्टेंट क्रक्स है वो आज भी रेलेवेंट है ग्लोबलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, जैसे द स्ट्रेचिंग ऑफ बॉर्डर्स, and transnational participation and cooperation, interaction एक borderless world में, तो ये सारी चीजें इसी का ही पार्ट है। आगे बढ़ते जोसेफ स्टिल्ट ने एक बात कही है कि ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही हेलिंग काइंड ऑफ फिनोमिना की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन बहुत सारी डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आज ग्लोबलाइजेशन को एक बैकलैश मिल रही है। बैकलैश मतलब कहीं ना कहीं उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट किया जा रहा है, क्रिटिसिजम्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? बिकॉज सम ऑफ द टाइम इट इज फेल्ट दैट जो ग्लोबलाइजेशन है वो किसने बनाया है? इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द वेस्टर्न पावर्स। और जब वेस्टर्न पावर्स की बात आती है तब हम कोर कंट्रीज की जब हम बात करते हैं लाइक यूएस एक्सेट्रा, तो उन्होंने इसे सोच समझ के लाया है। कहने का मतलब है कि जो ग्रोथ प्रोसेस ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन से, ये बहुत ही एक्सक्लूसिव है, ये बिल्कुल भी इंक्लूसिव नहीं है और कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी को ये एडवर्सली अफेक्ट करता है। ठीक है, आज के टाइम में अगर हम स्टेटमेंट को एनालाइज करें तो हम इसका रेलेवेंसी आज भी देख सकते हैं बहुत केसेस में, लाइक कि जैसे जो ये एमएनसीज हैं या टीएनसीज हैं जो एक्चुअली दे आर born in अमेरिका एंड दे आर ट्रेडिंग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो जिस तरीके के ट्रेड प्रोसेस में और जो एथिकल जो डायमेंशन आ जाता है जब इनके ट्रेडिंग में, इनके बिहेवियर में, इनके एक्टिविटीज में, जो कि ये अदर पार्ट ऑफ द ग्लोब में करते हैं लाइक एशिया, लाइक अफ्रीका, लाइक लैटिन अमेरिका, तो वहां पे ये बहुत आई ओपनिंग स्टेटमेंट है। बहुत सारे केसेस में यू सी सिविल सोसाइटी प्रोटेस्ट्स, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट्स होते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट क्यों होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जिस तरीके से ये अपने एक्टिविटीज, प्रोडक्शन एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं, स्पेशली इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, क्योंकि बिकॉज देयर इज लो दे हैव टू पे लो टैक्सेस, थोड़ा जो जो लीगल जो डायमेंशन है वो भी मच वीकर होता है एज कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज, देन दे स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। तो ये एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं और इसके बोथ इट कैन हैव एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द एंटायर सोसाइटी, फॉर द एंटायर स्टेट। तो ये जो नेगेटिव या डार्क साइड है ग्लोबलाइजेशन का वो आज भी जिंदा है। ठीक है, इट इज नॉट वैनिश्ड, इट हैज नॉट वैनिश्ड। ओके, सो ग्लोबलाइजेशन इसीलिए इट इज रियल बट इट इज नॉट परफेक्ट। यस, वो एक रियलिटी है, लेकिन अगर हम बोले ग्लोबलाइज्ड ऑर्डर इज द परफेक्ट वर्ल्ड सिस्टम, देन वी कैन नॉट अग्री ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, बिकॉज यहां पर रीजनल और इंटरस्टेट वेरिएशंस अभी भी मौजूद है। ठीक है, then there is a little timeline which traces the key events in the history of globalization, जैसे ITU इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन कब स्टैब्लिश हुआ, फर्स्ट ट्रांस बॉर्डर एयरलाइन सर्विस, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कैसे हुई, पहला मैकडॉनल्ड्स लाइक इन 1955 the first McDonald's came, restaurant was introduced, then global village, first communication satellite, 1972 में फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस दैट इज द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ये भी आपने पढ़ी होगी। ऑल्सो when we will deal with the environmental part of international relations, we will refer to this particular कॉन्फ्रेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब का इंट्रोडक्शन होना। सो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में ये बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन था। वी विल डील विद ऑल दीज थिंग्स। ओके, नाउ ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है उस पर डिफरेंट इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेज आए हैं। ठीक है, तो जब अगर हम ग्लोबलाइजेशन को एनालाइज करें, देन देयर आर डिफरेंट स्कॉलर्स हु हैव सेड वेराइटी ऑफ थिंग्स अबाउट ग्लोबलाइजेशन, बट अगर हम उसको एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे में पढ़े, देन वी रेफर इन द एकेडमिक टर्मिनोलॉजी इन्हें डिबेट्स कहते हैं। और ये डिबेट्स तीन सेट ऑफ स्कूल से आते हैं, हाइपर ग्लोबलिस्ट, स्केप्टिक्स और ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट। इनका जो आइडिया है ये कैसे ग्लोबलाइजेशन को इवैल्यूएट करते हैं कि इनके हिसाब से ग्लोबलाइजेशन क्या है और उसका क्या इंपैक्ट पड़ा है वर्ल्ड कम्युनिटी पे। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं हाइपर ग्लोबलिस्ट में। इनके नाम से ही पता चलता है, हाइपर ग्लोबलिस्ट मीन्स दैट दे आर वेरी एंथुजियास्टिक, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक
अबाउट ग्लोबलाइजेशन। इनके हिसाब से ग्लोबलाइजेशन ने एक नई काया पलट कर दी है पूरे विश्व की। सो एक न्यू ग्लोबल एज आ चुकी है और इसके हिसाब से, इनके हिसाब से ये बहुत खुश हैं क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जैसा फिनोमिना ना आज से पहले कभी इंट्रोड्यूस हुआ और जैसे ही ये इंट्रोड्यूस हुआ है इसने पूरे विश्व की काया पलट कर दी है। ठीक है, और ये इन सारी चीजों पे क्यों बिलीव करते हैं इतना ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इनका जो स्ट्रेस है वो करते हैं इकोनॉमिक लॉजिक पे, मार्केट्स पे। ठीक है, तो जो ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमिक डायमेंशन है, जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, मार्केट्स की बात करते हैं, या फिर सप्लाई चेन्स, ट्रांसनेशनल सप्लाई चेन्स की बात करते हैं, तो इनके हिसाब से ये बहुत अच्छी बात हुई है और इसकी वजह से ही ग्रोथ और डेवलपमेंट दुनिया में आई है और बहुत सारी स्टेट्स की दशा भी बदली है हु आर एक्चुअली अंडर डेवलप्ड, ये जो डेवलपिंग थे, तो उनको बहुत ज्यादा फायदा मिला है ग्लोबलाइजेशन से, अकॉर्डिंग टू दी हाइपर ग्लोबलिस्ट। ठीक है, साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो इन्होंने करी है वो ये है कि जो नेशनल गवर्नमेंट्स है उनकी पावर कम हो चुकी है। इनके हिसाब से अब जो स्टेट है या फिर जो नेशनल गवर्नमेंट्स है, अब उनका कोई भी रोल बचा नहीं है इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ऑर्डर पे, क्योंकि ये जो सब कुछ मार्केट के अकॉर्डिंग चलता है, सब कुछ वर्ल्ड मार्केट के लॉजिक से चलेगा और ये एक नया ग्लोबल सिविलाइजेशन, एक न्यू ग्लोबल सिविलाइजेशन। सो द स्टेट्स हैव एक्चुअली नो रोल लेफ्ट in the globalized world order. Also, they believe that new global division of labor has replaced the old hierarchies. ठीक है, जो old hierarchies है वो अब खत्म हो चुके हैं। जैसे हम नॉर्थ साउथ का जो डिवाइड बोलते थे, ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ, एक डेवलप्ड कोर है और एक अंडर डेवलप्ड पेरिफेरल एरिया है, तो उनके बीच का जो ये डिवाइड है, जो ये गैप है, इनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू हाइपर ग्लोबलिस्ट ये खत्म हो चुका है आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ अ ग्लोबल डिविजन ऑफ लेबर। तो यहाँ पे सप्लाई चेन्स चलती हैं। ठीक है, देयर इज सप्लाई चेन्स विच आर रनिंग इन द एंटायर वर्ल्ड इकोनॉमी, और हर एक काम जो है बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से होता है। जैसे बोलते हैं ना, असेंबलिंग एक जगह हो रही है, किसी कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वो उसका मैन्युफैक्चरिंग एक जगह हुआ है, असेंबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स इज हैपनिंग इन सम अदर एरिया। तो इस तरीके का जो मतलब डिविजन ऑफ लेबर है कि मतलब स्पेशलाइजेशन पे बेस्ड है कि कोई जो कंट्रीज है या एक्टर्स है जो टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइज्ड है तो वो काम संभालेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग या मार्केटिंग में स्पेशलाइज्ड है तो वो काम संभालेंगे। तो इस तरीके से पूरा टेक्निकलिटीज का डिवीजन हो चुका है। आपने चीजों को और ज्यादा सिस्टमेटाइज्ड बना दिया है और इसकी वजह से क्या हुआ है कि जब हम देखते थे कि रिच और पुअर, कोर और पेरिफेरल एरियाज के बीच में जो ये गैप है, तो ये गैप धीरे धीरे डिमिनिश हो चुका है। साथ ही साथ जब हम फ्रेमवर्क ऑफ ग्लोबल ह्यूमन एक्शन की बात करते हैं, लाइक मैकडॉनल्ड्स या मेडोना की बात करते हैं, तो ये इनके हिसाब से ये बहुत ही डोमिनेंट मोटिव है। कहीं ना कहीं जब ये ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो इनके दिमाग में हमेशा मैकडॉनल्ड्स, मेडोना, इस तरीके का जो वेस्टर्नाइज्ड या अमेरिकनाइज्ड पिक्चर है, हमेशा वो जिंदा रखता है इस बात को। और इनके हिसाब से दिस इज एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन इन विच ऑल ऑफ अस शुड बिलीव इन। ओके, इसका जो बिल्कुल उल्टा पर्सपेक्टिव वो स्केप्टिक्स देते हैं। स्केप्टिक्स उनके नाम से ही है कि वो बहुत ज्यादा डाउटफुल हैं ग्लोबलाइजेशन को लेके। इनके हिसाब से ग्लोबलाइजेशन एक मिथ है जो क्रिएट कर दी गई है बाय द हाइपर ग्लोबलिस्ट। बहुत ज्यादा एग्जैगरेट करके चीजों को प्रेजेंट किया है हाइपर ग्लोबलिस्ट ने। जितनी फ्लारी या ब्राइटर साइड ऑफ ग्लोबलाइजेशन हाइपर ग्लोबलिस्ट दिखाते हैं वो एक्चुअली सच नहीं है, अकॉर्डिंग टू दी स्केप्टिक्स। ठीक है, इनके हिसाब से हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ग्लोबलाइजेशन के एरा में रीजनलाइजेशन की तरफ जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम अब अपने रीजनल डोमेन्स में या अपने ककून्स में घुसने के लिए वापस तैयार हो रहे हैं। लाइक यूरोपियन यूनियन का एक एग्जांपल है। तो यूरोपियन यूनियन आया है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ऑर्डर में, इट इज स्टिल ऑपरेशनल, इज अ वेरी लिविंग एग्जांपल ऑफ द फैक्ट दैट वी आर लिविंग इन अ रीजनलाइज्ड वर्ल्ड ऑर्डर। क्योंकि चीजें आज भी हम रीजन, ज्योग्राफी, अपना जो कॉमन बेनिफिट है उन्हीं के हिसाब से देखते हैं, रादर देन एक्टिंग एज अ ग्लोबल एक्टर। ठीक है, तो जैसे हम ब्रिक्स की बात करते हैं,
या हम G20 की बात करते हैं, या फिर हम आसियान या सार्क जैसे नेशंस की, SCO, क्वाड जैसे नेशंस की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो रीजनलाइजेशन का एंगल है, वो इंटरडिपेंडेंस आज भी रीजनल डायनामिक्स से आइसोलेटेड नहीं है। और इनका मानना है जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं वो जितना इनको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया था हाइपर ग्लोबलिस्ट के द्वारा, आज नेशनल गवर्नमेंट्स प्राइमरी आर्किटेक्ट्स हैं इंटरनेशनलाइजेशन के। अगर कोई स्टेट लीडरशिप खुद ही नहीं चाहता है कि वो इस ग्लोबलाइज्ड ऑर्डर में पार्टिसिपेट करे, देन इट हैज फुल लेजिटिमेसी, आज उनके पास फुल अथॉरिटी है। लाइकवाइज अगर वो चाहता है कि वो किसी XYZ एक्टर के साथ ट्रेड करे या उनसे अपना इकोनॉमिक रिलेशंस डेवलप करे, ये आज भी उस नेशनल गवर्नमेंट या नेशनल लीडरशिप का ही अल्टीमेट या फाइनल डिसीजन होगा। तो स्टेट या फिर नेशनल गवर्नमेंट्स कहीं से भी डिमिनिश नहीं हुए हैं, ठीक है। Skeptics also bring out the darker side, they expose the darker side of globalization. इनके हिसाब से जो ग्लोबलाइजेशन आया है, जो थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स है, उनके लिए ये रिच और एक्सप्लॉइटेटिव ग्लोबल नॉर्थ को एक्सप्लॉइट करने का एक टूल बन चुका है। तो आज भी जो इनइक्वालिटीज है या हायरार्कीज है स्पेशली ग्लोबल साउथ में, वो मौजूद क्यों है? इसीलिए है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जो वेस्ट लेके आया है वो सिर्फ अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए लाया है। तो आज भी ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ को क्या करता है? एक्सप्लॉइट करता है। आज भी वो चीजें रेलेवेंट है, ठीक है। वो इनइक्वालिटीज, वो गैप, वो हायरार्कीज आज भी एग्जिस्टिंग है, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस दे से अग्रेसिव नेशनलिज्म, फंडामेंटलिज्म और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जो सैमुअल पी हंटिंगटन का आइडिया है, वो आज भी रेलेवेंट है। कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन में एक विनर और एक लूजर काइंड ऑफ कैंप बन चुके हैं। जो विनर्स हैं दे आर कंटिन्यूअसली ऑन द ग्रोइंग एंड डेवलपिंग साइड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लेकिन जो लूजर्स है इन द फेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन दे हैव रिजॉर्टेड टू दिस फंडामेंटलिस्ट रूट, ठीक है। आज भी जो लूजर्स है, जो कहीं ना कहीं अपने आप को ग्लोबलाइज्ड ऑर्डर में एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में रखते हैं, तो वो आज भी उनके लिए फंडामेंटलिज्म का रास्ता लेना या अग्रेसिव नेशनलिज्म का रास्ता लेना आज भी खुला है, ठीक है, क्योंकि इनइक्वालिटीज है ऑब्वियसली सोसाइटी में। फिर जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का आइडिया है वो है कल्चरल क्लैश, जो कि मौजूद है अकॉर्डिंग टू हंटिंगटन, और वो होगा ही होगा। कहीं ना कहीं जो सिविलाइजेशंस है आपस में उनके जो कोर वैल्यूज और बिलीव्स है, लाइक वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड ईस्टर्न सिविलाइजेशन और इस्लामिक सिविलाइजेशन, जो उनकी कोर वैल्यूज और बिलीव्स है वो एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो क्लैश है सिविलाइजेशंस का, वो इट इज अ रियलिटी एंड इट विल हैपन इन फ्यूचर अकॉर्डिंग टू हंटिंगटन, ठीक है। इन ऑल्सो दे बिलीव दैट ग्लोबल गवर्नेंस को फुलफिल करने के लिए किया है, और इनके लिए जो डोमिनेंट इमेज है ग्लोबलाइजेशन की वो है नेशनल इंटरेस्ट। तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबलाइजेशन है उस करने के लिए आज भी वर्क कर रहा है। सो देयर रेलेवेंस, द स्टेट्स रेलेवेंस हैज नॉट डिमिनिश्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट। ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट एक बैलेंस्ड व्यू लेते हैं हाइपर ग्लोबलिस्ट और स्केप्टिक्स के बीच में। दे आर्ग्यू दैट यस, ये तो मानते हैं कि यस ग्लोबलाइजेशन इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन ने रैपिड सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक चेंजेस लाए हैं, जिसकी वजह से मॉडर्न सोसाइटीज रीशेप हुई हैं। हम इस बात को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये सिर्फ अच्छे के लिए हुआ है या ये सिर्फ बुरे के लिए हुआ है, देन वी आर मेकिंग अ मिस्टेक, बिकॉज इनके हिसाब से दिस इज अ वेरी डायनामिक प्रोसेस और ये बहुत ही ओपन एंडेड है। तो उसकी फ्यूचर ट्रेजेक्टरी को डिमार्केट करना एक फिक्स्ड पाथ पे वो हमें नहीं करना चाहिए, एंड वी शुड लीव इट टू द कमिंग टाइम्स। जैसे टाइम्स चेंज होंगे, सिचुएशंस एंड कंडीशंस विल चेंज, अकॉर्डिंगली आवर आइडियाज एंड आवर पर्सपेक्टिव विल ऑल्सो चेंज। सो दे टेक अ वेरी बैलेंस्ड व्यू, ओके। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू देम ग्लोबल स्ट्रैटिफिकेशन हुआ है,
नेशनल गवर्नमेंट्स रीस्ट्रक्चर हुई है, कहीं ना कहीं जैसे ग्लोबलाइजेशन की बात होती है तो कहीं ना कहीं ग्लोबल स्ट्रैटिफिकेशन हुआ है। एक जैसे ग्लोबल नॉर्थ, पहले सिर्फ ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ था, अब बीच के जो मीडियोकर एक्टर्स है, डेवलपिंग कंट्रीज, न्यूली इमर्जिंग कंट्रीज, फास्ट डेवलपिंग कंट्रीज, तो ये जो कैटेगरीज है, पैटर्न्स है, वो इमर्ज हुई हैं और साथ ही साथ नेशनल गवर्नमेंट्स भी अपने आप को चेंज किया है। ठीक है, अब इनका मानना है कि जो स्टेटहुड का कंसेप्शन था, जो वेस्टफेलिया का मैंने पहले बात करी थी अपने आईआर वाले लेक्चर्स में, द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में जो स्टेट की सॉवरेनिटी का एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया था, वो एक्चुअली चेंज हुआ है, क्योंकि अब हम नई तरीके की सॉवरेनिटी रेजिम्स देख रहे हैं। अब सॉवरेनिटी स्टेट की दिखती नहीं है, लेकिन बहुत चीजें जो इनविजिबल हैं या इनडिविजिबल हैं, वो आज भी रियलिटी बन चुकी हैं। ठीक है, ऑल्सो दे बिलीव दैट कुछ एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजीज इसीलिए जो स्टेट्स हैं वो लेते हैं कि कैसे हम इस चेंजिंग वर्ल्ड में अपने आप को एडजस्ट करें। जैसे कोई स्टेट न्यू लिबरल बनता है तो वो मार्केट और इन सारी चीजों का रूट लेते हैं। ऑन द अदर साइड सम स्टेट्स टेक द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, कि यहाँ पे हमें नेशनल गवर्नमेंट को एक सेंट्रल फोर्स की तरह रखना है, बिकॉज वी वांट वेलफेयर इन आवर इकोनॉमी, आवर प्राइमरी गोल शुड बी वेलफेयर। या कैटेलिटिक स्टेट, कि हमें कितना नेशनल गवर्नमेंट को पावर देनी है, कितना सेंट्रल गवर्नमेंट ड्रिवन होना चाहिए एंड कितना पावर हमें मार्केट्स को देनी है। तो इस तरीके का जो एडजस्टमेंट है, जोड़ तोड़ है, स्टेट्स ग्लोबलाइज्ड ऑर्डर में करते हैं। आगे बढ़ते हैं, व्यूज ऑफ द स्कॉलर्स। कुछ स्कॉलर्स है, इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और इनका वर्क जानना बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनकी बुक्स पूछ ली जाती है, इनका कोर आइडिया पूछ लिया जाता है, तो आपको कुछ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होनी जरूरी है। लाइक जगदीश भगवती, उनका बुक है इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इन्होंने भी ग्लोबलाइजेशन को हेल किया है, ये फेवर में है ग्लोबलाइजेशन के। इनके हिसाब से ग्लोबलाइजेशन ने ट्रिकलिंग डाउन ऑफ ग्रोथ लाया है, इनइक्वालिटीज डिमिनिश करी है और बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज स्टेट्स के लिए, स्टेट्स को प्रोवाइड करी है। जोसेफ स्टिल्स, मैंने इनका मेंशन किया है पहले भी, इनका वर्क ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिस्कंटेंट्स, मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क। वो कहते हैं कि ठीक है, ग्लोबलाइजेशन इज अ रियलिटी, वी ऑल एक्सेप्ट दैट, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी काम करना चाहिए कि कुछ ग्लोबल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें रिप्रेजेंटेटिवनेस या फिर ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करनी चाहिए, तो ही हम इस एंटायर फिनोमिना को फ्रूटफुल बना सकते हैं। नेक्स्ट इज अमर्त्य सेन, अ वेरी रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, नोबेल प्राइज विनर। वो कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है, यहां पे इट हैज स्टेड अवे फ्रॉम फ्रॉम द पावर परफॉर्म्ड वर्स। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो इंक्लूसिव ग्रोथ की प्रॉब्लम है वो आज भी मौजूद है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, और ग्लोबलाइजेशन ने अच्छा भी किया है बट कुछ चीजें नेगेटिव भी हुई है। जो जो स्टेट्स ग्लोबलाइजेशन को, जिन स्टेट्स ने दूर रखा है, तो वहां पे उनके लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज डिमिनिश हुई है। साथ ही साथ आशुतोष वार्ष्णेय का जो वर्क है ग्लोबलाइजेशन इन रिट्रीट, तो ये कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है यहाँ पे इट इज चैलेंज्ड बाय द राइज ऑफ नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स एंड आल्सो पेव्ड वे फॉर राइट विंग पॉपुलिज्म। इनके हिसाब से जो ग्लोबलाइजेशन है, कहीं ना कहीं यहाँ पे नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स आई है, तो वहां पे इट इज चैलेंज्ड बाय नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स। उन्होंने जो राइट विंग के पॉपुलिस्ट लीडर्स है, क्योंकि इनके हिसाब से ग्लोबलाइजेशन से इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज आई है, कल्चरल इनसिक्योरिटीज आई है, और जिसकी वजह से ये जो पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स है, उन्होंने फंडामेंटलिस्ट आइडिया को प्रोपोगेट किया है और साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन को चैलेंज किया है कि ग्लोबलाइजेशन का आइडिया इतना भी फ्लारी या अच्छा नहीं है जितना ही एक्चुअली दिखता है। सो वी नीड टू क्रिटिकली एनालाइज इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रताप भानु मेहता, अ वेरी रिनाउंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उनका कहना है, उनका बुक सेकंड कमिंग है, और उनका कहना है कि ग्लोबलाइजेशन बहुत ही डीलेजिटिमाइज्ड फिनोमेना है। डीलेजिटिमाइज्ड का बेसिक मतलब ये है कि जो इसकी सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी है, सोर्सेज ऑफ लेजिटिमेसी है, वो कहीं ना कहीं अब खो चुकी है। तो ऐसा नहीं कि ग्लोबलाइजेशन अब अमेरिका लेके आया था तो अमेरिका ही कंट्रोल कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो वल्नरेबिलिटीज है और जो टर्ब्यूलेंस है, आगे के टाइम उनको डील करना इट विल बी अ चैलेंज, क्योंकि इसका कोई भी ओरिजिनेटिंग डिफाइंड सोर्स आज मौजूद नहीं है। इसके डाइवर्सिफाइड
फ्रेगमेंटेड सोर्सेज है ग्लोबलाइजेशन के, कैसे ये वर्क कर रहा है। और इसीलिए अगर इसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया तो ये प्लूटोक्रेसी में बदल जाएगा। प्लूटोक्रेसी बेसिक मतलब डोमिनेट बाय द रिच कम्युनिटी, सिर्फ एलिट्स ही ग्लोबलाइजेशन का पूरा पूरा बेनिफिट उठा पाएंगे और जो गैप है रिच और पुअर के बीच में वो डिमिनिश हो जाएगा। नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर एंड हियर वी विल डील विद द क्रिटिकल इवैल्यूएशन पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी लेक्चर के किसी भी टॉपिक पे आप क्रिटिकल इवैल्यूएशन जरूर पढ़े, बिकॉज दिस हेल्प्स यू टू मेक योर ओन पर्सपेक्टिव अबाउट अ पर्टिकुलर कंसेप्ट। ठीक है, आप क्या एक कंसेप्ट के बारे में सोचते हैं या आप उसको इफेक्टिवली बैलेंस आउट कर सकते हैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स के लिए। तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, मैंने बताया ग्लोबलाइजेशन एक ट्रांसफॉर्मेटिव फिनोमेना है, इसके फार रीचिंग डेवलपमेंटल इंपैक्ट्स हैं, बट कहीं ना कहीं उसको क्रिटिकल लेंस से भी नापा गया है बाय मेनी स्कॉलर्स। जैसे वो इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज की बात करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ग्लोबलाइजेशन ने विनर्स लूजर्स दोनों बनाए, और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वन सेट ऑफ स्टेट्स आर एक्चुअली द फोर रनर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उन्हें बेनिफिट मिला है, बट एट द सेम टाइम कोई ऐसे स्टेट्स भी मौजूद हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो ग्लोबलाइजेशन से अपनी खुद की आइडेंटिटी भूल चुके हैं। तो ये होमोजेनाइजेशन की तरफ जा रहा है। फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, सिविल सोसाइटी प्रोटेस्ट है, फंडामेंटलिज्म, फेल्ड स्टेट्स है, पॉपुलिज्म, राइट विंग गवर्नमेंट। मैंने देखा है जैसे ट्रम्प की गवर्नमेंट जब आई थी तो दे ब्रॉट द आइडिया अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। तो ये कैसे एंटी इमिग्रेशन के अगेंस्ट जा रहा है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमको डील करना है, कि कैसे पॉपुलिज्म या राइट विंग गवर्नमेंट्स एक्चुअली उन्होंने अपना बेस ही ग्लोबलाइजेशन को चैलेंज करते हुए बनाया, या जैसे इस्लामोफोबिया को लाना, बार बार उसको पब्लिक फोरम्स पे रीइटरेट करना, या फिर ट्रम्प की गवर्नमेंट के दौरान उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की बात करी, क्योंकि उनके हिसाब से द नेशन इज फर्स्ट, अमेरिका इज फर्स्ट एंड अमेरिका इज फॉर अमेरिकन्स। तो जो भी एंटी इमिग्रेशन आइडियाज है, एजेंडाज है, वो उनके हिट लिस्ट में रहे। तो इस तरीके की पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स बहुत सारे, नॉट ओनली अमेरिका, वी शुड नॉट जस्ट टॉक अबाउट अमेरिका, बट मेनी स्टेट्स, फ्रांस, जर्मनी, मेनी स्टेट्स, दे हैव ट्राइड टू ग्लोबलाइजेशन में बाहर निकलने के बजाय वो वापस अपने होम आइडियाज में या अंदर की तरफ अपनी स्टेट की, अपने ककून की तरफ घुसने वाली बात करते हैं। Then Professor Ramesh Thakur has also talked about globalization as a soft face of capitalism, कि कैपिटलिज्म आज भी वो है लेकिन उसका चेहरा बदल चुका है। ठीक है, इंटेंशन वही है, इकोनॉमिक और सोशल राइट्स को एडवर्सली अफेक्ट करना, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका है। अब वो एक्सप्लॉइटेटिव टर्म कैपिटलिज्म से नहीं जाना चाहता है, उसे ग्लोबलाइजेशन का नाम दे दिया गया है, लेकिन चीज वही है। ठीक है, नोम चॉम्स्की वो कहते हैं प्रॉफिट ओवर पीपल। ग्लोबलाइजेशन सिर्फ सिंपल कैपिटलिज्म के लॉजिक पे चलता है, प्रॉफिट पीपल में प्रॉफिट को चूज करिए, बिकॉज दैट इज व्हाट इज ड्राइविंग ग्लोबलाइजेशन। ओके, अरुंधति रॉय अपनी जो वर्क है कैपिटलिज्म अ घोस्ट स्टोरी, वो कहते हैं ग्लोबलाइजेशन इज अ म्यूटेंट वेराइटी ऑफ कोलोनियलिज्म। कोलोनियलिज्म का एक म्यूटेड फॉर्म जो है वो आपको ग्लोबलाइजेशन दिख रहा है, कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस कर दिए गए हैं, लेकिन चीज जो है वो आज भी वही है। तो ये सारे क्रिटिकल इवैल्यूएशन है, आप एक बार देख लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए। इन केस यू फाइंड दैट यू आर हैविंग प्रॉब्लम, कहीं भी आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम आती है, मैं बार बार कहती हूँ प्लीज डू कमेंट, मैं उसको आपको बिल्कुल रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। साथ ही साथ वी विल ऑल्सो डील विद ग्लोबलाइजेशन की सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है, इसमें हमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल डायमेंशन कवर करना है, और वो मैं सेपरेटली हर एक लेक्चर में कवर करूंगी, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें कंफ्यूजन बेसिकली ना क्रिएट हो। तो अभी ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ग्लोबलाइजेशन का, लेकिन साथ ही साथ हम इसके डायमेंशन को भी सबसे अपकमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे। So thank you everyone. So we are signing off, and again please like, share, comment, subscribe to my channel, all the newcomers. और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप अपने प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आई विल श्योरली लुक एट इट, आई विल श्योरली कंसिडर इट, एंड थैंक यू once again for joining in for the lecture, and we will meet soon again with continuing the series of globalization. Thank you once again.